Hello. Hi. So if you do not know me, let me introduce myself. I'm Avika Yadav and I scored 19.4% in my class 10 CBSE board exams. I lost 8 marks as a total. I only had 5 subjects. Now, I could have potentially scored 100% if I avoided these 8 to 10 mistakes, and I scored around 85 to 86 in my pre-boards. Exact scores I do not remember, but it was around 85 to 86. So what mistakes did I improve that led to an 13% increase in my percentage? So let's discuss all of it. First of all, which was skipping NCRT for maths and SST. I felt that question answers के लिए मैं अच्छे से बस एक बार लर्न कर लूँगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी, so that will be enough, but it was not. I should have preferred reading the NCRT for maths and SST. Secondly, which is not clearing tough topics. So what I used to do was, if I ever found a tough topic, I used to just simply cram it up, रट्टा मार लेती थी that okay ऊपर ऊपर से पढ़ लिया. Otherwise I used to get really irritated कि क्यों समझ नहीं आ रहा है. And this led to me losing 2 marks in my science boards क्योंकि मैंने वो हेरिडिटी वाला टॉपिक अच्छे से समझा नहीं था, and I lost marks there. थर्ड विच इज़ मैथ्स में बहुत कम प्रैक्टिस करना. मैं क्या करती थी, आई यूज़ टू प्रैक्टिस 1 2 टाइम्स एंड मैंने सोचा दैट वी हैव अ 10 days गैप बिफोर अ मैथ्स एग्जाम, तो उसमें मैं सब पढ़ लूँगी. बट आई लिटरली वेस्टेड 5 ऑफ दोज डेज एंड बचे हुए 5 दिनों में मैं कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाई. 5 विच वॉज नॉट स्लीपिंग वेल, सिली मिस्टेक्स करना. आई यूज टू स्लीप फॉर 4 to 5 hours usually, still I do, and before my boards I slept for 2 hours before my SST board. Still I managed to score 99, but that was my mistake because during the entire paper मैं ऐसे थी. So अच्छे से हो जाना. Mistake that I did for English was that I used to study the day before my exam 4 to 5 days. मुझे लगता था इंग्लिश के लिए तो कौन ही पढ़ता है, English is such a easy subject. I did not practice much unseen passages, which led to me losing 1 mark in unseen passage. उसका एक क्वेश्चन था जिसमें बहुत ऑब्वियस आंसर था, मैंने वो भी मिस कर दिया बिकॉज मैं बहुत रश कर रही थी. सेकेंडली विच इज़ अबाउट हिंदी. हिंदी में मात्राओं पे मैंने बहुत लास्ट में ध्यान दिया. लिटरली मेरे बोर्ड्स आने वाले थे, उसके 10 15 दिन पहले मेरे को लगा कि मे बी मेरे को मात्राओं पे काम करना चाहिए, मात्राएं सही करनी चाहिए, एंड दैट लेड टू अ ब्लंडर. Third, which is science. Science, I lost 2 marks. I scored 98 in science, which I regret till now. Science was my strongest and is still my strongest. Now, 1 mark I lost for bio में heredity में. Second 1 mark I lost in physics, which was 1.5 actually, 97.5, but rounded off to 98. That 1.5 marks I lost in a question of physics, which was literally exactly same from the one in Abhay batch by Next Toppers. प्रशांत सर ने जब बोर्ड्स होने के बाद वो वीडियो निकाली, दैट एग्जैक्टली पेपर यहीं से आया. आई रिग्रेटेड इट सो मच कि यार एग्जैक्ट अगर क्वेश्चन इन्होंने बैच में पढ़ा है, सेम पैटर्न में पढ़ाई हुई है, देन व्हाई डिड आई मिस ऑन इट. So you can definitely go for Abhay batch by Next Toppers. Basically this batch is a 45 days crash course in which ये बोर्ड स्पेसिफिक पढ़ाई करते हैं बहुत ज़्यादा. बोर्ड्स इज आर टारगेट. बोर्ड्स में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने अब तक पढ़ाई नहीं करी है, देन यू कैन study from this batch and score above 90 to 95 because 80% of what is taught in the batch you will find exactly in your boards. And ये बहुत ज़्यादा result producing भी है, as you must have seen. All India rank 1 for 2023 and All India rank for 2024 of my time both was from Next Toppers only. एंड आई थिंक 2025 भी इसी बैच से होगा, तो तुम बन सकते हो ऑल इंडिया रैंक 1 बाय ज्वाइनिंग द नेक्स्ट टॉपर्स का अभय बैच. बेस्ट पार्ट दैट आई फील इट हैज़ इज द ब्रह्मास्त्र किट, जिसमें दे प्रोवाइड आंसर शीट्स, की एग्जाम बोर्ड, बुकलेट एंड कीचेन. आंसर शीट्स आर द बेस्ट क्योंकि तुम्हारी लिख के प्रैक्टिस हो जाती है, तो तुम्हारे में कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है. एंड ऑल्सो इट्स फॉर अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 1500 ओनली. दो आई मिस्ड आउट ऑन दिस बैच, लेकिन जो 4 बजे दिगराज सर, प्रशांत सर एंड शोभी सर की मैराथन होती थी, दैट वॉज द बेस्ट. जो सुबह सुबह जो लोग पढ़ाते थे ना, एग्जैक्टली बोर्ड्स में आ जाता था, एंड वी वर सो शॉक्ड कि यार ये तो सुबह ही पढ़ के आए हैं. सो वो मैराथन दे ऑल्सो डिड ऑन यूट्यूब, बट जो पहले का पढ़ाया था वो यूट्यूब पे नहीं था, एंड ऑब्वियसली वो मैंने मिस कर दिया, तो उसका रिग्रेट एंड गिल्ट है मुझे. लेकिन वो मैराथन मैंने देखी थी एंड इट वॉज वेरी वेरी गुड. एक तो तुम्हारा रिवीजन हो गया बहुत अच्छे से, उसके बाद में एग्जाम से पहले तुम्हें तो सुबह सुबह कॉन्फिडेंस भी गेन हो गया कि ठीक है यार ऐसा ऐसा पढ़ना था, एंड नाउ आई हैव रिवाइज कम्प्लीटली, और क्वेश्चन की कैसे कैसे आ सकते हैं वो भी तुमने पढ़ लिया है. और थोड़ा सा व्हेन यू सी ना कि लास्ट ईयर इनके मैराथन से क्वेश्चन आए थे, तो तुम्हें उस चीज़ से भी थोड़ा कॉन्फिडेंट फील होता है कि अच्छा ठीक है मैंने अब तो पढ़ लिया है, नाउ आई कैन गिव माई एग्जाम विदाउट फीलिंग नर्वस. अदर डिटेल्स यूल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो फॉर इट नाउ. नाउ फॉर एस एस टी मेरी जनरल नॉलेज की वजह से 1 मार्क्स लूज करा. क्वेश्चन वॉज द लैंग्वेजेस स्पोकन इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका. केस बेस्ड क्वेश्चन था, कोई डाटा इसका गिवन नहीं था वहाँ पे.
ना ही हमने पढ़ा था कि स्टेट में कौन सी लैंग्वेज पढ़ी जाती है या बोली जाती है, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था। बट एक स्टेट का तो मैंने सही बता दिया, एक का मैं नहीं बता पाई, सो इट वॉज अ 2 मार्क क्वेश्चन एंड आई लॉस्ट 1 मार्क देयर। लास्टली फॉर मैथ्स के लिए तो मुझे सबसे सबसे ज़्यादा रिग्रेट है, क्योंकि मैथ्स में मैंने क्या करा, आई वॉज इनिशियली वेरी ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि हाफ ईयरली में स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर में आई स्कोर 98 आउट ऑफ 100 एंड मेरे प्री बोर्ड्स में आई स्कोर 98 एंड 99 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। ठीक है, नाउ आई थॉट अगर इस लेवल का पेपर आ रहा है तो आई कैन स्कोर प्रीटी वेल। सो आई डिड फोकस ऑन ऑल 4 सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट मैथ्स, क्योंकि मुझे लगा 10 दिन का गैप है, उसमें आराम से कर लूँगी। 10 में से 5 दिन मैंने वेस्ट कर दिए, बचे हुए 5 दिन में मैं कुछ अच्छा कर नहीं पाई। एंड पूरे एग्जाम में मेरे को हर एक आंसर आता था, बट आई वॉज टू डिस्ट्रैक्टेड, क्योंकि मेरी साइड में मेरी एग्जाम में करके चाय पी रही थी। बट लेट्स नॉट ब्लेम हर, इट्स माई फॉल्ट ऑब्वियसली, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा था। एंड वेन आई वॉज राइटिंग द MCQs मैंने उसके आंसर शफल कर दिए, जिस वजह से सही होते हुए भी वो आंसर ऊपर नीचे हो गया एंड मेरे को उसके मार्क्स नहीं मिले एंड आई लॉस्ट 3 मार्क देयर। मैं पोटेंशियली 100 स्कोर कर सकती थी, बट आई लॉस्ट इट। ना सम जनरल मिस्टेक जो सब लोग कर देते हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए, विच इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर एस्टिमेटिंग इंटरनल के मार्क्स। टीचर से अच्छे रिलेशन बना के रखो, होमवर्क टाइम टू टाइम करो, जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह उन्हें कंप्लीट करो, 20 मार्क्स तो पक्के करो एटलीस्ट। टीचर्स गिव 20 मार्क्स फुल ऑन फुल अगर यू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम एंड यू आर एन ओबीडियंट स्टूडेंट। सेकेंडली, रिविजन नहीं करना। मेरी तरह अगर तुम भी गैप डेज पे छोड़ोगी कि एग्जाम के पहले कर लेंगे, एक दिन में रिवाइज कर लेंगे, नहीं। एग्जाम से एक दिन पहले तो तुम्हें सब कुछ कंप्लीट कर लेना है, लास्ट डे पे वापस से सेकंड और थर्ड टाइम रिवाइज करना है। दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी। एंड थर्ड एंड द लास्ट पार्ट विच इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तुम सब क्या करते हो, यू गाइज गो फॉर एवरीथिंग बट फॉरगेट प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिससे क्या होता है एग्जैक्टली सेम जो क्वेश्चंस उठ के आ रहे हैं और जो पैटर्न है वो तुम्हें समझ नहीं आता एंड ऑब्वियसली यू स्कोर लेस। Well, thank you so much for watching. I think that was it for this video. Do not forget to like, subscribe and share, and I hope I've covered all the points that I should have. Bye bye.